کہا کہ جب کہیں جماعت ہو، بھیڑ ہو، مسلم نان مسلم سب ہو تو کیا کریں گے؟ ان اسامہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی مجلس، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس سے ہوا، فیہ اخلاط من المسلمین والیہود، اور یہود تھے، فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلام کیا، مسلمانوں کو اپنی نیت میں رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ استحباب السلام اذا قام من المجلس، اسی طریقے سے مستحب ہے کہ سنت ہے کہ جب آپ مجلس سے کھڑے ہوں تو بھی آپ سلام کیجیے، جب اپنے جلساء اپنے رفقا کو آپ چھوڑنے لگے، جدا ہونے لگے تو وہاں سلام کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں آئے تو سلام کرے، فاذا اراد ان يقوم فليسلم، اور جب کھڑا ہو کر جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ سلام کرے، یعنی جاتے وقت بھی سلام کرو۔ فلیست الاولى بأحق من الاخر، کیونکہ وہ پہلے مرتبہ سلام کرنا جو کہ ملاقات کے وقت کیے ہیں وہ بہتر نہیں ہے کس سے؟ یہ جدائی کے وقت سلام کرنے سے، کیونکہ وہاں تو ملاقات ہو، یہ بھی تو آپ اٹھے بیٹھیں گے، اور یہاں تو جدائی ہو رہی، پھر ملاقات پتہ نہیں کب ہو، تو سلام کے بعد جدائی ہو زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلیست الاولى بأحق من الاخرۃ، وہ پہلی بار سلام یہ دوسری بار سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے، زیادہ حق بجاری نہیں ہے، تو سلام جاتے وقت بھی کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سلام کے وقت مصافحہ یہ مسنون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا اجر ہے۔ ذرا دیکھیے، بشاشت وجہ کے ساتھ، حساس بساس چہرے کے ساتھ ملاقات کیجیے اور مصافحہ کیجیے۔ ابو الخطاب قتادہ کہتے ہیں قلت لانس اکانت المصافحۃ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم، میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا صحابہ آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما جاء اہل الیمن، کن لوگوں نے مصافحہ کرنا شروع کیا؟ وہاں جو شروع میں آدم علیہ السلام نے جا کر کے فرشتوں سے سلام کیا تھا، کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا، کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہاں مصافحہ کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ مصافحہ شروع کہاں سے ہوا؟ ذرا دیکھیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما جاء اہل الیمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم اہل الیمن، جب اہل یمن آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو باخبر کیا کہ اہل یمن تشریف لائے۔ وہم اول من جاء بالمصافحۃ، اہل یمن وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مصافحہ کو رواج دیا، اور مصافحہ کو لے کر کے یہ اس کے رواج کو مدینہ میں یہ لے کر کے آئے۔ تو یہ ہے مصافحہ۔ مصافحہ کہتے ہیں یہ صفحہ ہے اور یہ ظہر ہے۔ مصافحہ کہتے ہیں صفحہ کو ملانا، دائیں ہاتھ آپ کا ہو، دائیں ہاتھ آپ کے ساتھی کا ہو تو دونوں ملے گا تو صفحہ ملے گا، اور اگر آپ نے دونوں ہاتھ ملایا، آپ نے بھی اور آپ کے ساتھی نے دونوں ہاتھ ملایا، تو خالی مصافحہ نہیں ہوا، مظاہرہ بھی ہوا۔ اس کے پیٹھ پر بھی آپ نے ہاتھ رکھا، اس نے بھی آپ کے ہاتھ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، تو مصافحہ نہیں بلکہ اس کے لغوی اعتبار سے مظاہرہ کہیں گے۔ اس وجہ سے دو ہاتھ سے سلام نہیں کرنا ہے، سلام ایک ہاتھ سے کرنا ہے، سلام ایک ہاتھ سے کرنا ہے، تبھی وہ مصافحہ ہوگا، ورنہ وہ مظاہرہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذرا دیکھیے فضیلت دیکھیے مصافحہ کی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین، نہیں ہے دو مسلمانوں میں سے کوئی، یلتقیان کی دونوں ملاقات کرتے ہیں، یعنی دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، فیتصافحان پھر دونوں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، مگر یہ کہ دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے قبل اس کے کہ دونوں جدا ہوں یا ہاتھ دونوں چھوڑائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لہذا موقع ملے تو آپ مصافحہ ضرور کر لیا کیجیے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ اور ذرا دیکھیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، الرجل منا یلقا اخاہ، ہمیں سے ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، او صدیقہ یا اپنے دوست سے، اینحنی لہو، تو کیا اس کے لیے جھکے جیسے لوگ یوں کرتے ہیں، کیا جھکے؟ قال لا، کہا نہیں۔ قال افا یلتزمہ، تو کیا اس سے پکڑ کر چمٹے، ویقبلہ، اسے بوسہ دے؟ قال لا، کہا نہیں۔ قال فیأخذہ بیدہ ویصافحہ، کہا کیا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مصافحہ کرے؟ قال نعم، کہا ہاں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، یعنی عام سلام کے لیے بوسہ لینا، عام سلام کے لیے روزمرہ کے سلام میں
चिमटना, मुआनका करना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है और ना ही ये सहाबा का मामूल रहा है कि सुबह शाम की मुलाकात में आप मुआनका कीजिए, सुबह शाम के सलाम में आप एक दूसरे से चिमटें, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और देखिए ज़रा, सफ़वान इब्न उसाल क्या कहते हैं? सफ़वान इब्न उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क़ाला यहूदियुन लिसाहिबिही, एक यहूदी अपने दोस्त से कहा, इज़हब बिना इला हाज़ा नबी, मुझे नबी के पास ले चलो। फ़अतयाहु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसे लेकर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़सअलहु अन 30 आयात बय्यिनात, तो 9 वाज़ेह आयात निशानी के बारे में उन्होंने सवाल किया। फ़ज़करल हदीस इला क़ौलिही, तो पूरी हदीस को उन्होंने जिक्र किया। कहाँ तक? फ़क़ब्बला यदहु व रिजलहु, तो उन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को और पैर को चूमा। वक़ाला नशहदु अन्नका नबिय्युन, हम गवाही देते हैं कि आप नबी हैं। तो वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर को चूमने और हाथ के चूमने का तज़किरा है कि उन दोनों ने चूमा। इसी तरीके से देखिए, अच्छा ये सलाम की बात नहीं है, ये यकीन जान लीजिए भाई, सलाम तो मुलाकात के वक्त होती है, आए, गुफ्तगू हुई, खुश हो करके, हैरानी वाली बात देख करके, एक तस्दीक जिसकी चाहते थे अचानक उसकी तस्दीक हो गई, रोज़ रोशन की तरह आया हो गया कि सच्चे पक्के नबी हैं, उस पर वो खुश होए और अपने आप को काबू में ना रख सके, चूमने लगे, आपका पैर चूमा, आपका हाथ चूमा। इसको तहिया के बाद में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि तहिया तो मुलाकात के वक्त होता है। और देखिए ज़रा, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, किस्सा, एक वाक़या बयान किया उन्होंने, काला फ़ीहा, उसमें बयान करते हैं, फ़दनौना मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के करीब हुए। फ़क़ब्बलना यदहु, तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को चूमा। तो गोया कि बसा औक़ात सहाबा कराम मुलाकात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूमते थे, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। आप बाबरकत थे, आपका हाथ बाबरकत था। आजकल कोई जुब्बा और दस्तार वाला ये समझे कि जैसे बाबरकत हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था, वैसे बाबरकत हमारा हाथ है, वैसे बाबरकत मैं हूँ, हमें भी चूमा जाए, हमारे हाथ को भी चूमा जाए, तो उसके लिए इसमें कोई दलील नहीं है, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फितने में पड़ने का कोई खदशा नहीं था। आजकल अगर किसी को चूमना शुरू कर दे पब्लिक, तो आदमी गुमराह हो जाएगा, दूसरों को गुमराह कर देगा, और ये राह हिदायत से हट जाएगा। इसी तरीके से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, क़दिमा ज़ैद बिन हारिसा अल-मदीनता, ज़ैद बिन हारिसा मदीना तशरीफ़ लाए, व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बैती, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में थे। फ़अताहु फ़क़रा अल-बाब, वो आए और दरवाज़ा उन्होंने खटकाया, दस्तक दिया। फ़क़ाम इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजुर्रु थौबहु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा से बहुत मोहब्बत करते थे। खड़े हुए आप, कपड़ा आपका घिसट रहा था, यानी खुशी में आप दौड़ पड़े। फ़अतनक़हु व क़ब्बलहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआनका किया, गले मिले और आपने उनको चूम लिया। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडो प्यार था बाप साहबा के साथ। तो ऐसा कर सकता है, बाप बेटे को चूम सकता है, बड़ा भाई छोटे भाई को चूम सकता है, ये लाड प्यार का है, इसमें कोई शक नहीं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ि शैआ, नेकी, कोई भी नेकी कम ना जानो, हक़ीर ना समझो। वलो अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़िन, खा अपने भाई से बशाशत वजह, खुश खुर्रम होकर के, हसास बशास चेहरा बना करके अपने भाई से मुलाकात ही क्यों ना कर लीजिए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है। ये नहीं कि किसी से मुलाकात हो तो मालूम हो कितना आप गमगीन हैं, गम का पहाड़ टूट पड़ा, मुलाकात हो गई, नहीं। हाँ, उसके भाई के चेहरे पर मुस्कुराइए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, ताकि वो गमजदा हो तो उसका गम दूर हो जाए। मालूम हुआ कि वो खुश था, आपके गमी को देख करके वो बेचारा गमगीन हो गया कि क्या हो गया, हमारे आने की वजह से तो नहीं, शायद हमारी ज़ियाफ़त तो नहीं पसंद है इनको, शायद हमारे आने की वजह से इनका कुछ खर्च हो रहा है, इसकी वजह से तो नहीं गुस्सा हो गए। तो कम से कम मेहमान की आमद पर लोग ना तो बीवी को मारें, ना हंगामा करें, ना दंगा फसाद करें घर के अंदर, ना ही नाक वो चढ़ाएं मेहमान के सामने, बल्कि बशाशत वजह के साथ, ताकि उसका दिल बड़ा हो, उसका गम दूर हो, और ये समझे कि मैं अपने भाई के पास आया तो बड़ा खुश है। ये वतीरा मुसलमान का होना चाहिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मारूफ को, किसी भी नेकी को कमतर न समझो। आखिरी बात क्या है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
क़ब्बल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन बिन अली, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में थे, हसन बिन अली आए रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनको आपने बोसा दिया। बहुत सारे लोग थे, वहीं पर अक़रा इब्न हाबिस भी तशरीफ़ फरमा थे, अपने सरदार, अपने कबीले के सरदार थे, बड़े लोगों में से थे। उन्होंने कहा इन्ना ली अशरत मिनल वलद, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन बिन अली को आप बोसा देते हैं, मेरे 10 बच्चे हैं। मा कब्बलतु मिनहुम अहदन, उनमें से किसी को मैंने कभी बोसा नहीं दिया है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता है उस पर रहम नहीं किया जाता है। ये अपने बच्चों को बोसा देना ये रहमत और शफ़क़त पिदरी की दलील है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गोया कि आपके दिल के अंदर रहम नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। तो आप अपने छोटे बच्चों पर रहम नहीं करेंगे तो आपसे जो बड़ा है वो आप पर कैसे रहम करेगा। मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम किया नहीं जाता है। लिहाजा अपने बच्चों को लाड प्यार से बोसा देना, गोद में बैठाना, ये सब कुछ होना चाहिए। और बहुत सारे बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को बोसा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पता चला कि चीता घर में बैठा हुआ है, शेर घर में बैठा हुआ है, बच्चे चुपके से दबे पांव चल चल करके अम्मी को इशारा करके खाने पीने की चीज़ मांग करके खाते फिर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे बच्चे घर में नहीं ठहरते हैं, क्योंकि बाप मौजूद है। शेर मौजूद रहे तो हम जानवर कैसे मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप को चाहे नरम दिल रहे, शफ़क़त पिदरी झूम झूम करके घर के अंदर बरसे, बच्चे बाप के इर्द गिर्द बैठे रहें, चाहें कि हम वालिद के साथ बैठेंगे, वालिद के साथ गुफ्तगू करेंगे, मालूम हुआ एक शेर बैठा हुआ है और बच्चे लोमड़ी गिदड़ की तरह बच्चे इधर उधर घर के अंदर छुप जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आखिरी बात थी कि मुलाकात के वक्त चूमना और इसी तरीके से हाथ और पैर चूमना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब साबित है। आजकल ये सब ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जिसका पैर और हाथ चूमा जाएगा मुमकिन है कि वो फितने में पड़ जाए, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस शख्स को कयास नहीं किया जा सकता है। हाँ, लंबी जुदाई के बाद मुलाकात होती है तो मुआनका कीजिए, चिमटिए, ये सब दुरुस्त है। सलाम के बाद में कुछ गैर मुनासिब चीज़ें हैं। अजनबिया खातून के साथ सलाम करना, चिमटना, रुखसार मिलाना, होठ मिलाना, नाक मिलाना, नथुना, बहुत सारे लोग सलाम करते हैं अजनबिया खातून के साथ, ये हराम है। माला मसत यदुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदमरातिन अजनबिय्यतिन क़त्तु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने किसी अजनबिया खातून को कभी नहीं छुआ। जो शख्स इस बात को पसंद करे कि उसके सर में लोहे का खील डाला जाए, ठोका जाए, वो शख्स अपने हाथ से किसी अजनबिया खातून को हाथ लगाए, मना है। लिहाजा हमें और आपको मुसाफा करने की ज़रूरत नहीं है ख़वातीन से, ख़ासतौर से अजनबिया खातून से मुसाफा न करें, यही बेहतर है। और यहाँ एक चीज़ और है, सलाम के वक्त जो लोग रुखसार मिलाते हैं ये गलत है, होंठ मिलाते हैं ये गलत है, इसी तरीके से कहीं कई लोग ये नथुना मिलाते हैं ये गलत है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। कुछ लोग यूँ करके से चूमते हैं, वो भी चूमता है, दूसरा भी चूमता है, दूर फासला बना करके चूमते हैं, ये भी तरीका सलाम का नहीं है। मुसाफहा है, मुआनका है, इल्तिज़ाम भी है, चिमटना भी साबित है। बसा औक़ात ऐसा हो सकता है, प्यार से लगा लेना, छोटा बच्चा है, मुलाकात हुई है, खुशी से आप चिमटा लें या वो चिमटा ले आपको, ये सब दुरुस्त है। लेकिन चूमना ये है, आजकल अगर ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि किसी का पैर चूमा जाए, जैसा कि अहले बिदात और खुराफात आजकल खड़े होकर के या बैठ करके लोगों को अपना पैर चूमने को कहते हैं या मजबूर करते हैं, और जुब्बा और दस्तार वाले ऐसा सब करते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इस्लाम के बाब और तहिया के बाब में इस फितरा से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।